नमस्कार, मैं हूं एकता रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर का फेसबुक लाइव। आज अचीवर्स टॉक के तीसरे एपिसोड में मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अचीवर्स बैठी हुई हैं। इन तीनों देवियों से मैं आपका परिचय एक एक करके कराऊंगी और फिर ये बताऊंगी कि ये हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर क्यों हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम, स्टार्टिंग इन द chronological order, with Priyanka Madan, who is the life coach, who is a life coach by profession. She was the charter president of Rotary Club of Faridabad Tulips. आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका हमारे इस टॉक शो में। The second in line is Meenu Gupta. She is currently handling the chair responsibility of Haryana district for Mother and Child Welfare Rotary Club International and Rotary Club of Faridabad, of course, both. So I welcome you on this show, Meenu. Thank you so much for joining us. And the third in this order is currently the club secretary of Rotary Club of Faridabad Tulips, with us on this show, maybe for the first time with News NCR on a live interview, Sonia Luthra. Thank you so much for joining. So currently all of these ladies and myself, we are all associated with the Rotary Club of Faridabad, and why they are here on Achievers Talk today वो मैं बताती हूँ। जब हम एक path of righteousness पे चलते हैं, then I am so sure that every step that we take ahead is in the right direction. So Priyanka was recently awarded as the outstanding president of the Rotary Club of Faridabad Tulips as the charter president when she started the club in 2019-2020 session. So congratulations ladies to all of you, क्योंकि आप सभी को award मिला है, for the president to Priyanka Madan, for the club secretary to Meenu Gupta, and Sonia was the vice president during that tenure. ना सिर्फ ये बल्कि क्लब को भी द बेस्ट, द आउटस्टैंडिंग क्लब अवार्ड दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये अवार्ड लगभग 150 क्लब्स में से गिनती के 8 या 9 क्लब्स को ही दिया गया है, जिसमें से ट्यूलिप्स इज़ वन ऑफ देम। नाउ व्हाट इज़ गुड अबाउट दिस दिस अवार्ड इज़ that this was given to recognize their contribution, Priyanka's contribution and her entire team, who started this work as a social cause and combining it with fellowship. What is the difference between fellowship and social cause, and why Rotary? So let's start with the first question to Priyanka. My question is to you. बहुत सारे social clubs होते हैं, बहुत सारे charity clubs होते हैं। आप हमें ये बताइए कि जब आपको ये ऑफ़र दिया गया, when you were asked to be the charter president of the first all ladies club, what was your first reaction or first thought that came to your mind? We were at a party जब हमें डिसाइड हुआ कि let's start a ladies Rotary Club because it's the only ladies Rotary Club in Faridabad. Yes. So we discussed and then we went off to our homes. And in the morning when we got up, we saw a new club WhatsApp group. And then I called Meenu. I said, "What is this?" She said, "रात बात तो हुई थी, एक न्यू क्लब शुरू करना है." So you can say कि हमने जोक में शुरू किया कि भाई रोटरी क्लब खोलना है, बिकॉज हम लोग को था कि लेडीज को ज्वाइन करना है और कुछ ऐसा करना है जो फरीदाबाद में अभी तक नहीं हुआ है। एंड देन जब हमने आई स्टार्टेड कॉलिंग माई फ्रेंड्स, सोनिया, मीनू वॉज चार्टर सेक्रेटरी, सोनिया वॉज वाइस प्रेसिडेंट दैट टाइम। तो हम लोगों ने सब ने अपने फ्रेंड्स को फोन करना शुरू किया, एंड यू वोंट बिलीव इट, बाय द सेकंड डे वी हैड 75 लेडीज विद अस जस्ट इन 2 days. Just in 2 days. And that was the time when we really got serious कि yes, now some responsibility is there on our shoulders. Okay. तो जब आप जैसे कह रही हो कि 2 दिन में आपने 75 लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो क्या किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि रोटरी क्यों, हम कोई वैसे ही मजे करने के लिए क्लब क्यों नहीं बना लेते? Why just Rotary? Okay, तो मैं रोटेरियन हूँ for last 7 years in a Rotary Club of Greater Faridabad. Okay. So that's a couple club where my husband is a Rotarian and I go along with him. तो एक मन में ये भी था कि मुझे खुद भी रोटेरियन बनना था। दूसरा मुझे ये था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कपल रोटरी में जब जाते हैं तो हम अपने आप को एनहांस नहीं कर पाते। करेक्ट। और अपनी ना क्वालिटीज हमारे में है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि वो लोग हमें क्वालिटीज दिखा नहीं देते या मौका नहीं देते, बट समहाउ इट इज दैट इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कह रहे हैं ना, बिकॉज इट्स अ कपल क्लब, बिकॉज आप शैडो में रहते हैं। डेजिग्नेशन भी मेल की ज्यादा होती है। कई क्लब्स हैं जहाँ पे लेडीज भी प्रेसिडेंट बनी है, बट मेनली ऐसे होता है। सो हमारे मन में आया कि कोई ऐसा क्लब हो जहाँ पे हम हो। It's me, Priyanka Madan, right? And Sonia and Meenu. We can be called by our names. So and plus we have so much of talent. We know it. So we want कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम
truly दिखा सके without the restrictions, without saying no this can't be done, that can't be done, जहाँ हम full fledgedly अपना काम कर सके towards society. Right. So coming to you मीनू, आप भी रोटेरियन बैकग्राउंड से हैं. तो इनकी फर्स्ट चॉइस एज अ क्लब सेक्रेटरी आप रही. Right. तो when she chose you to become an important part, because club secretary is a position which is very very critical, almost the same power as the president, It which has the same currently power. which currently in this year Sonia is holding in Tulips. So club secretary की बहुत बड़ी responsibility होती है. As an independent member and an office bearer, were you mentally prepared to take up this work? क्योंकि अब तक आप हस्बैंड के साथ जा रही थी. बिल्कुल. एक्चुअली रोटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है. तो ऑलरेडी जब हम वर्क करते हुए देखते थे ना प्रेसिडेंट्स को और सबको, तो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आता था कि यार इतनी डेडिकेशन, इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं जी. तो जब प्रियंका ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने कंधों पर, शी सेड कि नहीं मैं करूंगी और प्रेसिडेंटशिप मैं करूंगी, अच्छे से निभाएंगे भी इसे. तो शी कॉल्ड मी कि मीनू तुझे चार्टर सेक्रेटरी बनना है. तो मैंने कहा यार बहुत टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ना एकदम से कैसे. तो इसने कहा नहीं बनना है, अपनी बॉन्डिंग वैसे ही वी वर फ्रेंड्स, तो अपनी बॉन्डिंग अच्छी है और साथ में काम करेंगे, मजा आएगा. और एक्चुअली एकता ऐसा हुआ, मतलब काम करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि वी आर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी. हमने ऐसे मन लगा के काम किया है. और कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रियंका ने मुझे कह देना अगर ये नहीं आ पा रही मीनू इस प्रोजेक्ट को कराना, करेक्ट, मतलब बिल्कुल बिंदास ब्लाइंडली कह देती थी. और मैं कह देती थी, मैंने कहा भाई आज मैं नहीं पाऊंगी, ये मेरी दिक्कत है या ये प्रॉब्लम है. कहती कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मीनू, तू आगे आ जाना. ये मतलब बहुत ही अच्छी एक कंपैटिबिलिटी रही, बहुत स्मूथ ईयर रहा. और बड़े ही हमने प्यार से और एक ग्रुप, मतलब एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट किया पूरे क्लब में भी कि लोग अपने आप जुड़ते चले गए. राइट. मैं तो कहूंगी कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हर पोस्ट जो भी होती है ना, वो सिर्फ साल की होती है. और साल के एंड में क्या कमाते हो, they are just the friends what you earn actually. Absolutely rightly said. I completely agree with Priyanka here, because जब हम कहते हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि शायद एक औरत ही एक औरत की लिमिटेशंस, उसकी चैलेंजेस को बेहतर समझती है. और यही वजह है कि because Priyanka understood the challenge of her other team members and they understood Priyanka's challenges better, I think the team functioned very smoothly. Coming to you, Sonia, you come from a corporate background and both of these are from industrial families. What was your reaction to becoming a part of an all-women club? Because Faridabad में बहुत different culture है, and I have to admit that it's a very different environment. Yes, you're right. How was corporate mingling with industrial? So when Priyanka, she introduced me to Rotary. Okay. I didn't know about Rotary much. So I started going along with her to various projects. मैंने जाना शुरू किया, मैंने वहाँ देखना शुरू किया, and definitely it is a big platform जहाँ पे आप एकदम से मेरा social circle expand हुआ. Correct. I met lot of ladies. Meenu I didn't know before this, but today she's a great friend. Wonderful. And thanks to Rotary for that. So उसी तरह से मैंने और भी फ्रेंड्स बनाई, बहुत सारी. मेरा सोशल सर्कल एक्सपैंड होने के साथ साथ यस फरीदाबाद में थोड़ा इंडस्ट्रियल कल्चर ज़्यादा है जी. सो यू नो व्हाट आई फील कि वो जब इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, ऑल लेडीज क्लब, देयर आर नो इनहिबिशंस, और ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है, तो दीज लेडीज कम आउट ओपनली एंड ये अपने आप को भी इंटरमिंगल करके बहुत ही आगे बढ़ती हैं अपने टैलेंट. राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. और वहाँ पर ना हम लोग जब क्लब में होते हैं, वी आर नॉट द इंडस्ट्रियलिस्ट वाइफ और द कॉर्पोरेट और दिस, देयर वी आर ओनली just women. यस, इट्स मी, दैट्स इट. एंड जो मैं हूँ, मैं ऐसी हूँ, एंड देन वी ओपन अप freely. तभी हम बेस्ट निकाल सकते हैं अपने में से. Absolutely. And I found that they're open to new things, and with the different people coming together, it's a wonderful collection we finally get. Great. मेरे टेन्योर के टाइम पे there were many ladies जो बहुत रिजर्व नेचर की थी. तो जब उन्होंने क्लब ज्वाइन किया, तो ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मन में कभी आता था कि दे आर सो रिजर्व. सो हमने कोशिश की, जैसे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग होती थी, तो हम उनसे प्लांटर दिलवाना या उनको आगे करना, कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि आप 4-वे टेस्ट बोलिए या MOC बनिए. तो उससे हमने ये देखा कि हमारा जो सोचना था ना कि वो रिजर्व्ड है, शायद दे वोंट बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली,
they were much better than those ladies who were bold enough in society. कमाल। So we were really amazed to see कि even they are so much talented, but just because कि platform नहीं है family की वजह, अब डेफिनेटली फैमिली में खड़े होकर भाषण तो दे नहीं सकते, बट ये कि अंदर है कहीं कि मेरे भी आगे माइक आए, मैं भी जाके कुछ करूं. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर यू. राइट, क्योंकि कई लेडीज ऐसी होती हैं जो करना चाहती हैं लेकिन ड्यू टू देयर शाय नेचर वो बोलती नहीं है, आगे से इनिशिएटिव नहीं लेती, और वो इनिशिएटिव हमने उन्हें दिया और सब लेडीज ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया और सामने आई और स्टेज पे भी बोली हैं. सोचो. राइट. मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप्स इज़ द फर्स्ट ऑल वुमेन क्लब ऑफ फरीदाबाद, second all women club in Haryana and the third all women club in Delhi NCR. So ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया प्रियंका कि इसमें केवल रोटेरियन वाइव्स नहीं लेनी बट अदर एरियाज ऑफ प्रोफेशन जैसे एडवोकेट या कॉर्पोरेट से या किसी और अलग फील्ड से, ये कैसे सोचा आपने? काफ़ी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड्स दे डोंट लाइक गोइंग आउट एंड स्पेशली उनको सोशलाइजिंग ये रोटरी की सोशलाइजिंग काफी लोगों को पसंद भी नहीं है बिकॉज वहाँ पे टाइम बाउंड एंड एवरीथिंग इज देयर. तो मैं चाहती थी कि जो नॉन रोटेरियंस हो ना उनको ज्यादा ऐड करें सो दैट दे गेट टू नो अबाउट रोटरी कल्चर एंड दे शुड नो कि रोटरी इज नॉट जस्ट फरीदाबाद, नॉट जस्ट इंडिया, इट इज इंटरनेशनल. तो वो कोई छोटे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ रही हैं, वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हैं और उनके भी मन में है कि वी सोशलाइजिंग हो एंड मेनी ऑफ देम कैन नॉट गो टू किटी पार्टीज. सो आई कॉल रोटरी प्लेटफॉर्म्स एज अ प्लेटफॉर्म विच इज a meaningful socialization. जहाँ आपकी बॉन्डिंग भी होगी, आप अपने आप को एनहांस भी करोगे, आपका जो प्रोफेशन है आप उसको भी एक लोगों को सामने दिखा सकते हैं, यू गेट क्लाइंट्स ऑल्सो. सो हर तरीके से ये रोटरी प्लेटफॉर्म ऐसा है विच इज अ प्लेटफॉर्म मस्ट फॉर एवरीबडी. वैसे केवल रोटरी ही समाज को नहीं देता, समाज भी रोटरी को बहुत कुछ देता है और उसका बहुत उम्दा एग्जाम्पल ये तीनों लेडीज़ हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू मीनू कि आप पहले क्लब सेक्रेटरी थी, फिर आप 2020-21 में क्लब प्रेसिडेंट रही एंड नाउ यू आर एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल वेयर यू आर हैंडलिंग दी मदर एंड चाइल्ड प्रोजेक्ट्स. यहाँ से वहाँ तक का सफ़र टचवुड बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन रहा. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना कैसा लग रहा है, मदर एंड चाइल्ड? एक था एक्चुअली लास्ट ईयर कोविड रहा, मेरे पूरे टेन्योर में कोविड का एक महामारी फैली हुई थी, बट स्टिल हमने बहुत ही डेडिकेशन से और जितने प्रोजेक्ट मैक्सिमम कर सकते थे और उसके लिए हमें बहुत अच्छा अवार्ड भी दिया डिस्ट्रिक्ट ने. तो डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टिविटी हमारी 3 साल से है एक तरह से लगातार, और उन्होंने काम को देखा, हमारी एक्टिवनेस को समझा और हम कितने इंडल्ज हैं रोटरी में उसको देखते हुए उन्होंने ये पोस्ट दी. और मैंने मतलब मेरा जहाँ तक मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट कहूँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट सक्सेसफुल इसलिए हो पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे और जब भी हमें डिस्ट्रिक्ट जाना होता था, लाइक आई एम होल्डिंग ए पोस्ट, वो भी इस साल पोस्ट हैं, वो ही इज आल्सो असिस्टेंट गवर्नर. यस, ही इज द असिस्टेंट गवर्नर. बट स्टिल मतलब एक सपोर्ट चाहिए होता है ना एक लेडी को कि भाई रात की मीटिंग्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट में यार, तो ही इज ऑलवेज रेडी फॉर दैट. और बहुत अच्छा सफर रहा. रोटरी की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है ना, मतलब तुम ये लगा लो हमारी सारी किटीज लेडीज की कोई भी और गैदरिंग अदर देन दैट कोई अच्छी नहीं लगती. रोटरी मीट्स में भी गो एंड प्रेफर दैट ओनली. उसके अलावा सब कुछ छोड़ दिया है क्योंकि उसमें सोशल कॉज, फेलोशिप, देयर इज सम केमिस्ट्री, बॉन्डिंग. और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम जब इसका टेन्योर था, दीज 2 लेडीज वर द लेडीज जो फार्म प्रोटेस्ट जो हुआ था, जी फार्मर्स उसमें ये क्या कुछ सामान नहीं लेकर के बोथ दीज लेडीज 2-2.5 घंटे के ट्रैफिक जैम में रुक कर दे रीच देयर और सारा सामान सप्लाई करवा के आई. तभी ये सब यहाँ पर है. एग्जैक्टली, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस. ऑल. So Sonia, coming to you, you've known her as a friend, right? What was the experience to work actually with her or maybe under her leadership in executive committee environment? वो कैसा लगा? Yeah, so Priyanka is my long time friend. Yes. And she only introduced me to Rotary, जैसे मैंने पहले कहा. तो जब काम शुरू हुआ
तो शी फाउंड कि आई कुड हेल्प हर इन सर्टेन मैटर्स. Okay. एक्चुअली वी वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. Wonderful. ओके. सो उसको जहाँ लगता था कोई दिक्कत आ रही है, वो मुझे बोलती थी कि सोनिया यहाँ कुछ अटक रहा है, मे बी विद सम कंप्यूटर वर्क, विद सम स्मार्ट डिजिटलाइजेशन वर्क. तो शी यूज्ड टू सीक माय हेल्प. तो उसी टाइम मैं करती थी. धीरे धीरे मुझे ये काम करना भी अच्छा लगा, एंड प्रियंका के थ्रू मैं काफ़ी ग्रास रूट लेवल सोशल वर्कर्स के साथ जुड़ी. वो काम मुझे अच्छा लगा. तो इस तरह से एक बॉन्ड. यानी हम जैसे बोलते हैं कि वुमेन ऐसे काम करते हो, ऐसे नहीं आप लोगों ने ऐसे काम करा है एज अ टीम. तो और इस एक काम ना इसी तरह सबकी जुड़ा. पॉजिटिवनेस हमारे अंदर ऐसा लगता है कि ट्रांसफर हो गई है. जैसे Right. जिसकी भी जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हमने ग्रैस्प कर ली, अपनी Correct. शायद कुछ दियो. Correct. तो ऐसे करके ना एक अच्छा करेक्टर और निकल के आया, और वो थॉट्स हमारी बहुत ही इम्प्रूव हुई. और मेरे ख्याल इतने सालों में हमने तीनों ने भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा होगा. आई एम श्योर मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे क्लब में. एक चीज़ हमें बताइए प्रियंका, आप नेक्स्ट टर्म में आप यू कमिंग एज द असिस्टेंट गवर्नर, हाँ जी. एंड आपके अंडर 5 क्लब्स हैं, जिसमें आई थिंक आई बिलीव वन ऑफ देम इज ट्यूलिप्स. हाँ जी. तो अब अपने ही क्लब के प्रेसिडेंट के बाद उस पर असिस्टेंट गवर्नर बन के आना कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो कहूँगी बैक इन द गेम अगेन. Yeah. ठीक है. Although I was not out of the game still, because इस साल I am a club trainer of the club. Yes. So but next year ये होगा कि जिस क्लब के आप पार्ट थे, आज उस क्लब को और एनहांस करने का मुझे मौका मिलेगा. Correct. एज एन एजी आई वुड बी एबल टू हेल्प देम एट अ लिटिल हायर लेवल. काम तो इन्होंने ही करना है. शी इज गोइंग टू बी द क्लब ट्रेनर नेक्स्ट ईयर. Yes. शी इज द प्रेसिडेंट. तो काम इन्होंने ही करना है, बट आई विल बी एबल टू गिव देम अ गुड पुश एज एन एजी. Right, I'm sure. हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी Again. Again. So the currents will flow better. Yes. Sonia, what is your vision as the next president? What is it that you want to do differently for the club? So 2 days back I was there at the award function along with Priyanka. मैंने देखा कि ये जो अवार्ड्स हमारे सामने पड़े हुए हैं ना, ये सबको नहीं मिले हैं, ये हमारे क्लब को मिले हैं. Only few clubs have got them, and some clubs have got outstanding club, लेकिन उनका आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी नहीं मिला है. Correct. मतलब ये तीनों अवार्ड लेना एक इतनी बड़ी बात होगी. आई एम चार्ज्ड अप. यू नो, इट हैज मोटिवेटेड मी लाइक एनीथिंग कि ओ माय गॉड, we हम ऑलरेडी शिखर पे हैं. अब हमें या तो उस शिखर का लेवल ऊंचा करना पड़ेगा, और साथ में वहाँ पैर जमा के टिके भी रहना पड़ेगा. टिके रहना पड़ेगा. वो 2 things you know heavily अब मेरे पे आ गई हैं. So naturally we'll do some. So what's going to be your approach? Will it be something different from what has happened up till now? See, naturally जब भी प्रेसिडेंट चेंज होता है तो उसका थोड़ा जो जिस एरिया में वो वर्क करना चाहता है, जो एरिया पसंद करता है, तो वो फोकस बन जाता है. करेक्ट. तो मेरे जो फोकस है, आई लाइक यू नो डूइंग समथिंग फॉर चिल्ड्रन. चाइल्ड लिटरेसी, ओके, इसमें मेरा ज़्यादा रहेगा. बिकॉज आई फील कि जो विद्या का दान है, शिक्षा का दान हमारे में काफ़ी बड़ा माना जाता है. बिल्कुल. तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा एजुकेटेड हो, और उसके लिए जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते, वो कुछ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं किसी तरह से उनको एम्पावर कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं. और आप डिजिटाइज भी करना चाहते हैं. Yes. And second thing is that with the digitalization that's everywhere. Yes. So we're going to make it. It's a very beautiful club, but we're going to make it a smarter club also now. Wow. So like मतलब, so ladies, I think you should get ready to pick up your phones and not just use them for Snapchats and filters and selfies, but also look forward to learning something good and great. With the digitization world becoming more active, तो सब कुछ smart work होना चाहिए, emails and WhatsApp and all, right? Everything. Right. So is there any message that you want to give, Priyanka, before I just wind up the show as the next assistant governor? The message is just keep going. Don't stop. Just keep going. Whether you walk, you crawl, you fly, don't stop. Don't stop. Keep going. Just keep moving. I think that's wonderful. At the end of the day, it's a very strong message. The 3 देवियाँ जो यहाँ बैठी हैं, and they are not stoppable, they are unstoppable. The energy is going to flow tremendously in the next year when, as Priyanka just told us, she's going to come as the assistant governor. Meenu is coming as the club trainer, and Sonia is going to be the club president for RCF Tulips. We wish them lots of luck, and हम चाहेंगे कि Achievers Talk में हम बार बार इस तरह की बहुत सी अच्छी अचीवर्स और महिलाओं को आपके सामने लेकर आए. That's all for today. Keep watching News NCR. नमस्कार. Thank you.